gravida at 12 weeks. Primary gravida at 12-week gestation came with history of exposure बेटा to दोबारा जरा क्लियर, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। प्राइमरी ग्रेविडा आपने बताया? yes ma'am जी, at 12 weeks at एट 12 12 weeks वीक। हाँ, with history of contact with chickenpox patient. ओके, ठीक है जी, आगे चलिए। मैम तो स्ट्रक्चर डिस्कशन कर रही हाँ जी, स्ट्रक्चर डिस्कशन। हूँ मैम बेसिकली आफ्टर इसको हम स्ट्रक्चर डिस्कशन में भी कर सकते हैं, और ज्यादा कॉमनली इसमें जो सिनेरियो बनता है वो काउंसलिंग का भी बनता है। जी मैम ठीक है, तो दोनों तरीकों से, लेकिन एनी वे वही हम इसको स्ट्रक्चर डिस्कशन से चलाते हैं, और काउंसलिंग में तो फिर ये सारी चीजें कवर हो ही जाएंगी जो हम स्ट्रक्चर डिस्कशन में कर रहे होंगे डिस्कस। जी मैम जी बताइए। after mutual introduction and हम्म। confirmation of giving data to me, I will take details of demographic data in which I will हाँ। ask about patient name, age, marriage since, and occupational status, educational status, and I will हाँ। take history of contact, take history of exposure to chickenpox, हाँ। whether she has contact with with the patient for how long she was exposed, and after confirmation of significance of contact, I will take history of previous history of chickenpox infection or chickenpox vaccination done previously or not. If there is हाँ। uncertain, and then I will ask about how her pregnancy is going so far till now, whether she is taking folic acid or not, and I will ask about I will ask about any history of comorbid diabetes, hypertension, TB, or any other comorbid in her and her family, any previous surgical significant history, and regularity of cycle, any allergic to drugs, and any history of transfusion and socioeconomic status. I will ask about how is the social support at home. हाँ। Then, ओके, ठीक। अब yes, आगे ma'am. चलिए। Yes, ma'am. आपने Um, इसमें इसमें ये आपने करंट हिस्ट्री पूछी, पास हिस्ट्री पूछी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पूछा, व्हाट एल्स इन हिस्ट्री वी गेट uh, स्टिल ऑन हिस्ट्री? ma'am, history, contact history, between history of symptoms and history of fever like illness, like any history of fever, malaise, lethargy, or any history of race to her. हाँ। Um, अच्छा। चले आगे चलती जाए। Yes, ma'am. Then I will do examination. Then general physical examination. I will I will take the vitals of patient and blood pressure, pulse, temperature, respiratory rate, and look for pallor haze in the conjunctiva. And then I will look at thyroid and look at pedal edema and have a look over the patient for any maculopapular rash. एंड लुक फॉर। Maculopapular rash over the body. ओके ओके, अब आपकी आवाज जरा सही आई है हमें पहली दफा। ठीक है, यस और मैम, वो डिस्कनेक्ट कर दी मैंने हैंड फ्री। ओके ओके, चले, ठीक है। Then I will look do by abdominal examination and look for do abdominal examination, check fundal height, and after examination, then I will go for investigations. ठीक है, चलती जाए आगे। Yes, ma'am. And हम investigation, बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। I will check her baseline health profile in which CBC look at hemoglobin, TLC, platelet count, and viral marker hepatitis B surface antigen, anti-HCV, random blood sugar, urine complete examination, and then I will take recent obstetric ultrasound. And I will also check her if there is uncertainty of previous infection
or no history of vaccination previously, then I will check her varicella zoster virus immunoglobulin status, whether positive or negative, and will manage accordingly. Okay. Or If varicella zoster virus immunoglobulin IgG are positive, then I will reassure her and manage pregnancy as routine. But if varicella zoster virus immunoglobulin are negative, then I will offer her varicella zoster virus immunoglobulin. And okay, she turns out to be negative. Yes, ma'am. She is then, looking for immunoglobulins. ma'am, आप if उस she is scenario negative, पर discuss करें. जी ma'am, if she is negative for varicella zoster virus immunoglobulin, then I will counsel the patient that she is at risk of developing varicella zoster virus infection. So I will offer her varicella zoster virus immunoglobulin, and immunoglobulin can be offered within 10 days of exposure. And um, um, and I will advise her to avoid contact susceptible patients like pregnant patients and neonates. Okay. And अब देखो okay. अब इसमें आपने right away you started with the therapy rather prophylaxis, and have you talked to the patient? sorry, ma'am. Have you talked to the patient? Patient के साथ आपने communicate किया? जी ma'am. Your I will management parts start from the patient counseling as a first step. yes, ma'am. I will counsel her regarding that as she has contact with varicella patient. So she and her immunoglobulins are turned to be negative. She is at risk of developing infection. So it is better that we will offer her varicella zoster virus immunoglobulin, which will decrease the risk of infection developing and decrease the risk of complications associated with infection. Okay. After counseling and consent, then we will offer her varicella zoster virus immunoglobulin. ठीक है. And I will counsel her that avoid contact with susceptible patients, like susceptible individuals like a pregnant patient and neonates. Okay, the patient comes to you almost 5 days after the contact. Yes, ma'am. Then what you will do? Ma'am, up to 10 days of Patient till that time, the patient is symptom free and there are no signs otherwise. ma'am, still She we gives history of can, contact. if she has 5 days since the contact and her immunoglobulins are negative, then we still can offer her varicella zoster virus immunoglobulin. Okay. Immunoglobulin are effective up to 10 days from the exposure to contact. Within 10 days, if she comes, then we can offer her varicella zoster virus immunoglobulin. Okay. Now the same patient, she comes to you 5 days PM, but as a first scenario, we discuss is to be a symptom-free and sign-free patient. But if at the time of presentation, at the time of going to a doctor, she has rash at that time. When you examine her, then there is rash over the body. Then how you will proceed on with the management? I will counsel the patient regarding the diagnosis that she has developed chickenpox infection. Since she has developed the rash, and if she report to us within 24 hours of the rash development, then I will offer acyclovir tablet, acyclovir 800 mg 5 times a day for 7 days, and advise and will treat her symptomatically, and will counsel her regarding to maintain good hygiene
so that she could not develop secondary bacterial infections and maintain good hydration. And I will advise her to avoid contact with pregnant patient and neonates. Um, yes, ma'am. And well, उसको कैसे दोगे? ma'am, acyclovir, if she's mildly symptomatic, then we will give her in oral form tablet acyclovir 800 mg 5 times a day for 7 days. And if she is severely ill, she has developed complications, so we can go for IV acyclovir. Okay. Why don't we give her immunoglobulins? Because the patient is now symptomatic and having the infections after the contact. Why not to give immunoglobulins now? Because she has developed the infection. So probably when her symptoms will resolve, she will have a natural immunity against the infection. So there's no role to give immunoglobulin. Okay, she is very much concerned about the fetal effects. She questioned you that will there be any effect on my fetus? Then what will be your answer? I will counsel her that there is there's minimum risk of infection to fetus or fetal varicella syndrome, which can occur if infection develop before 28 weeks of pregnancy. She is at 12 weeks. Yes, ma'am. So she can develop fetal varicella syndrome. There is a small risk. There's probably 0.9% risk to develop fetal varicella syndrome. With the first episode of this chickenpox infection now which has been developed in this lady, will the chances of fetal varicella syndrome be increased just with the first infection or with the recurrent? Ma'am, after when infection occurred in pregnant lady, so with the first infection it does not occur, but after 4 to 5 weeks, there may be reactivation of that virus, so that may lead to fetal varicella syndrome. And what is the hallmark signs of the fetal varicella syndrome? Ma'am, there may be which you can detect on ultrasound as well. Soft tissue calcifications and microcephaly, hydrocephalus, and there is basically the common systems to be involved with the varicella syndrome are the skin, eyes, and the central nervous system. जी ma'am. Okay, so the main focus will be on these, not only in the fetal varicella syndrome, but as well as in the newborn infections. If the mother gets this infection at term and the baby is born with the transmitted infection, then these three systems can be badly affected in the severe cases. Now wrapping up the case, we come to the final discussion with this case. इसमें जो हमारे बाकी audience हैं, how do they comment upon the history of this patient जो इन्होंने हमें बताई, उसमें क्या deficiencies थी? Madam, Could it current be a little pregnancy. bit better? Huh? Yes, madam. Details of the current pregnancy were not asked. Planned, unplanned. How was the conception? Dating scan. And Age and leaking married for how long and treatment planned, unplanned तो हो गया, कोई treated infertility वाली चीज तो नहीं है. These all things. और इसमें एक और बड़ी important चीज इन्होंने मिस की हिस्ट्री में. What is that? Ma'am, other STIs. मतलब अदर STI भी हो सकती है टू सम एक्सटेंट, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, इन्होंने हमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं बताई. मतलब शी जस्ट आस्क्ड द क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्टेक्ट. अब कॉन्टेक्ट डिटेल में बेसिकली यू हैव टू फिगर आउट द इम्पोर्टेंट थिंग्स टू बी आस्क्ड फॉर, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है. क्योंकि जब आप पेशेंट को
से बात कर रहे होते हैं तो उस पे उस इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्ट का बताते हुए उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन दैट हैज टू बी इन्फॉर्म टू द पेशेंट। तो उसमें कॉन्टेक्ट डिटेल में क्या चीज थी जो इन्होंने बतानी थी हमें? Madam, age of that patient, Ma'am, duration of exposure, ड्यूरेशन ऑफ time of एक्सपोजर, exposure, क्लोजनेस timing of ऑफ एक्सपोजर, closeness, the टाइप ऑफ द distance. इन्फेक्शन। ठीक है, ये सारी and चीजें हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कॉन्टेक्ट की जो डिटेल है ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो ये सारी चीजें पूछना बहुत जरूरी है। इसमें ये सारी ये सब चीजें जो हैं ये हम उससे पेशेंट से डिटेल में पूछते हैं और इसको मेंशन भी करते हैं जब हम इसको बता रहे होते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल, क्योंकि इसी के बेस पे फिर आपकी बाकी डिस्कशन भी चलेगी। सपोज एक एक पेशेंट है, उसका एक्सपोजर जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स हुआ है और उस तरह से एक कमरे में बहुत दूर बैठा हुआ है, फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं है, एंड जस्ट फॉर ए फ्यू सेकंड्स या आप कह सकते हो 1-2 मिनट के लिए, दैट इज नॉट ए सिग्निफिकेंट एक्सपोजर। तो उसमें उसके चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन टू दैट पेशेंट आर मिनिमल। तो इसलिए जो है वो हम उसको इस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के ऊपर उसको काउंसल करते हैं पेशेंट को। सो दिस मस्ट बी नोन टू हर। अब जो इन्होंने बाकी अब ये है कि जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, पेशेंट हमारे पास आया कि हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट थी, ये वो बाज दफा पेशेंट इमीडिएटली आ जाते हैं within 24 hours, they are so much concerned and sometimes they are not aware of the consequences, but when या फिर ये भी होता है कि एक आप फर्ज किया किसी के घर मिलने जाते हैं या बच्चा है आपके स्कूल में, अगर कोई स्कूल टीचर है, उसमें बच्चे को कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि इसको चिकन पॉक्स हो गया, यानी रैश उसका बाद में अपीयर हुआ, उसका इन्फेक्टिविटी पीरियड तो उससे पहले उसका शुरू हो चुका हुआ था। तो उसके बाद जब डायग्नोज होता है तो फिर उस वक्त पेशेंट को जो है वो एक थोड़ा सा वो एंजाइटी डेवलप होती है कि आई वॉज हैविंग कॉन्टेक्ट विद दिस चाइल्ड, तो इसमें मेरे ऊपर क्या इफेक्ट होगा या प्रेगनेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। देन शी रश टू द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर। लेकिन एक मिनट बेटा जरा। हेलो वेस्टर्न जी, हेलो। तो ये है जो सारा आपने उसको बताना, क्योंकि इसमें जब हम अब पेशेंट का जो ये वाली सारी चीजें हैं ये उसकी काउंसलिंग की एक बुनियाद बनेगी। अब ये जो दूसरी चीज इन्होंने एग्जामिनेशन में क्या चीज मिस की? जी एनीवन, हमें इन्होंने जो एग्जामिनेशन बताया उस पे क्या चीज मिस की? Ma'am, temperature. ठीक है, वो तो चलो हम सिम्टम में भी पूछ रहे होते हैं तो ठीक है, एग्री। और वाइटल्स में वैसे सारा कुछ ही आ जाता है। बेसिकली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रैश, अब मैकुलोपेपुलर रैश तो बता दिया, बट इट हैज टू बी एक्सप्लेन इन डिटेल इफ द रैश इज देयर। क्योंकि अगर तो आप कह देते हैं ना कि नो रैश तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप बताते हैं कि इसमें मैकुलोपेपुलर रैश है तो व्हाट इट मीन्स। तो मैकुलोपेपुलर रैश जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी होती है, क्योंकि बहुत सारी स्किन इरप्शंस ऐसी हैं प्रेगनेंसी में जो कि जिसकी हर एक की डिटेल फर्क है। तो उसको फिर अलहदा से आपने, और आपका जो डायग्नोसिस बनता है वो एक हिस्ट्री अप, फीवर, रैश, फ्लू, ये सब चीजें तो कॉमन हो सकती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम में, लेकिन स्पेसिफिकली ऑन द टाइप ऑफ द रैश। अब ये जो रैश या इरप्शंस है या जो बाद में वेजिकल्स ये बन जाते हैं, अब दीज कैन सिमुलेट विद अदर स्किन कंडीशन, सो इट हैज टू बी डिस्क्राइब्ड। इसकी जो नेकेड आई अपीयरेंस होती है उसको उसकी डिस्क्रिप्शन बताना जरूरी होता है कि ये मैकुलोपेपुलर रैश से मतलब क्या है, और बाद में जब इसके वेजिकल्स बनते हैं, क्रस्ट डेवलप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो भी उसमें बताना होता है। वंस यू सी अ पेशेंट विद रैश, हो सकता है ये सिनेरियो ऐसे आए
कि पेशेंट का एक्सपोजर हुआ 5 दिन पहले और अब वो आई है विद द फीवर, फ्लू एंड रैश ओवर द बॉडी, और जो है वो एक बच्चे के साथ एक्सपोजर हुआ जिसको रैश था। अब हो सकता है आपके जो सिनेरियो है उसमें रैश की डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दी हुई हो, एंड देन यू हैव टू मेक अ डायग्नोसिस ऑन दैट डिस्क्रिप्शन। तो अनलेस यू नो इट यू कैन नॉट मेक अ डायग्नोसिस। तो इसलिए जो है वो इसका सारा इसकी डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है। तो ये था जो इन्होंने मैम मिस किया। क्या दूसरी बात ये है, दूसरी मैम बात ये है बेटा, एक मिनट, कि 12 वीक्स पे आप फंडल हाइट कहाँ से देख सकते हैं? तो फंडल हाइट का तो बिल्कुल भी यहाँ पे उस तरह से जरूरी नहीं है, खास तौर पे अगर अल्ट्रासाउंड भी हो चुका हुआ है। बस बहुत रेयरली अगर आप कभी सोचें कि ट्विंस ना हो या कोई ये मोलर प्रेगनेंसी ना हो तो उसमें फंडल हाइट ज्यादा हो, वो वाली एक रिमोट पॉसिबिलिटी है जो बहुत रेयर, मतलब उस तरह से वो आ जाती है। तो वहां पे आप इसकी किसी तरह से जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। नाउ इन इन्वेस्टिगेशन, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन में तो ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री अगर सजेस्टिव नहीं है ऑफ अ सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन इन द पास्ट या कोई वैक्सीनेशन की हिस्ट्री नहीं है, तो इसमें फिर हम जो है वो उसमें उसकी इम्यूनोग्लोबुलिन को स्क्रीन करते हैं। नेगेटिव की सूरत में रीअश्योर, और पॉजिटिव की सूरत में फिर आपने इसको जो है वो पॉजिटिव की सूरत में आप रीअश्योर करते हो, नेगेटिव की सूरत में फिर आपकी आगे स्ट्रेटजी शुरू हो जाती है। नाउ शी हैज स्टार्टेड विद द immunoglobulins straightforward as a first choice for prophylaxis. Was it okay? हाँ जी, इन्होंने immunoglobulins दे दी straight away after the significant exposure. Suppose the exposure is very significant. अगर तो वो इनसिग्निफिकेंट एक्सपोजर है तो देन यू वेट एंड सी, उसमें फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ही आपने मेजर करना होता है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है उसमें जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, क्या इम्यूनोग्लोबुलिन ही इसका वाहिद हल है या फर्स्ट चॉइस है? जी, एनीवन? नो जी बेटा मैम, बताइए। साइक्लोविर होता है फर्स्ट हाँ चॉइस। जी। अगर आप इम्यूनिटी अगर डेवलप नहीं होती तो अकॉर्डिंग हाँ टू न्यू गाइडलाइन हम हाँ फर्स्ट एसाइक्लोविर देते हैं, और फिर उसकी डोज वो नहीं होती जो कि रैश डेवलप्ड हो तब होती है। डोज हाँ चेंज है, लेकिन हम फर्स्ट एसाइक्लोविर है, देन सेकंड इम्यूनोग्लोबुलिन है। हाँ, ठीक है। बेसिकली इसमें जो हमारी फर्स्ट चॉइस होती है वो होती ही एंटीवायरल है। देखो इम्यूनोग्लोबुलिन्स, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, गाइडलाइन भी और अपनी कंट्री की भी बात करें, तो इम्यूनोग्लोबुलिन ऑन द फर्स्ट स्टेप इज नॉट अवेलेबल इन मैनी कंट्रीज। हमारी कंट्री में तो अवेलेबल नहीं है। सेकेंडली कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, और इसके अलावा जो इफेक्टिविटी है वो आप एंटीवायरल जब आप ड्रग्स देते हैं इजी टू कैरी ऑन और उसमें देना आसान है। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपने ओरल एंटीवायरल देनी है तो व्हाट एंटीवायरल स्पेसिफिकली, in what dose and for how many times, and after how much time of the exposure it should be started. जी, हमारी जो प्रेजेंटर हैं वो हमें इसके बारे में बताएंगी। हेलो Ma'am, acyclovir after exposure, it is written that it is written in the GTG guideline that we हाँ will offer immunoglobulin after contact and acyclovir after rash. Any other guideline? I don't नहीं, know. ए साइक्लोवायरे क्यों नहीं हम देते? It is written that acyclovir should be given within 24 hours of development of rash. ए But साइक्लोवायरे, ए yes, साइक्लोवायरे ma'am. की बात आप कर रहे हो। Yes, ma'am. हालांकि इसको हम विद इन 24 आवर्स नहीं देते। हम जितना अच्छा। अर्ली इसको शुरू करेंगे उसमें उतना ही उसका जो एक उसकी जो अपनी एंटीबॉडीज बनना या जो जो, जो प्रोसेस है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, वो उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता।
बल्कि ये हम ये जो हम देते हैं एंटीवायरल देते हैं, वो उसका आइडियल टाइम है टू गिव 7 days आफ्टर द एक्सपोजर। ठीक है, उसको 7 days के बाद आप देते हैं। दिस इज जस्ट प्रोफाइलैक्सिस, नॉट द ट्रीटमेंट, दो इट इज यूज्ड इन द डिफरेंट डोजेज रिजीम फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल। लेकिन ये है कि उसको आपने देना है 7 to 14 days तक। ये है जो कि आपका जो लेटेस्ट उसमें गाइडलाइंस है। आप कौन सी गाइडलाइन की बात कर रहे हो बेटा? मैम ये मेरे पास ग्रीन टॉप गाइडलाइन है, 2015 की है। नहीं, मैं 2024 की बात कर रही हूँ, अच्छा मैम, फिर वो नहीं दे जो लेटेस्ट मेरे पास। अपडेट है। तो उसमें ठीक है। इसको 7 to 14 days पे जाके देते हैं। ठीक है, और ओ, इसमें इसमें जो, क्योंकि देखो इसमें जैसे जैसे टाइम टू टाइम गाइडलाइन बनती है, एक चीज फिर प्रैक्टिस में आती है, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे बाद देयर इज नीड टू रिव्यू इट, क्योंकि उसके वो इफेक्ट अचीव नहीं हो रहे होते। तो जैसे अगर प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है डिजीज को होने से रोकना, लेकिन अगर ना रुके तो फिर उसका क्या हल है, उसमें फिर रिव्यू कमेटी बैठती है। तो बेसिकली हम फिर इसको देते हैं, एसाइक्लोवर देते हैं 7 to 14 days तक। इट शुड नॉट बी गिवन वेरी अर्ली, क्योंकि वेरी अर्ली उसकी वो प्रोफाइलैक्सिस इफेक्ट अचीव नहीं होता। हाउएवर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर बीइंग गिवन जब कॉन्ट्राइंडिकेशन हो एसाइक्लोवर देने की, या उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हों, तो उस सूरत में हम फिर इसको देते हैं। और दूसरी दूसरी चीज ये है कि इसमें जो एक और फिनोमिना जो होता है कि सपोज आपने पेशेंट को एसाइक्लोवर दे दिया, उसके कुछ अर्से बाद पेशेंट को दोबारा हो गया चिकन पॉक्स, फिर उसको कैसे मैनेज करोगे? फिर मैम चिकन पॉक्स हो गया। मैम फिर तो हाँ, कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे क्योंकि इसकी इम्यूनिटी जो है वो कंटिन्यूड रहती। ठीक है, चिकन पॉक्स होने की सूरत में भी आपने एसाइक्लोवर ही देनी है, ये ट्रीटमेंट की बात है। लेकिन ये उस सूरत में जब सीरो कन्वर्जन होगी, आईजीजी बन गई, ठीक है। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें पहला एक्सपोजर के बाद सीरो कन्वर्जन नहीं हुई, ठीक है, आपने प्रोफाइलैक्सिस दे दिया रूटीन में, कुछ अरसे के बाद 2-3 हफ्ते के बाद दोबारा एक्सपोजर हुआ और सीरो कन्वर्जन जो है वो अभी भी नहीं हुई, अगेन यू विल रिपीट द सेम प्रोफाइलैक्टिक डोज ऑफ एसाइक्लोवर। और इम्यूनोग्लोबुलिन आप उस सूरत में दे सकते हैं अगेन फॉर द सेम इंडिकेशन, अगर ये री एक्सपोजर जो है ये होता है उसकी पहले वाले प्रोफाइलैक्सिस देने के 3 हफ्ते के बाद। ठीक है, इसको सिंपली, ये जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, इसको सिंपली आप ये याद रखो कि सीरो कन्वर्जन ना होने की सूरत में रिपीट एक्सपोजर पे भी आपने वही प्रोफाइलैक्टिक डोज देना है, और सीरो कन्वर्जन होने की सूरत में वो ट्रीटमेंट की लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर सो फार? यस मैम। ठीक है, कांटेक्ट के बाद, एक्सपोजर के बाद पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, प्रेफरेबली एंटीवायरल, एंड इफ नॉट इंडिकेटेड अदरवाइज तो फिर आप इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हो। एंड इफ शी डेवलप्स द सिम्टम्स देन फिर उसमें हॉस्पिटल एडमिशन की भी रिक्वायरमेंट होती है, अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो जाए, हेपेटाइटिस हो या न्यूमोनिया हो, ये उसकी बहुत ज्यादा एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, स्पेशली द न्यूमोनिया, जो कि उसकी मोर्टेलिटी पे भी लेके जाता है। ऐसी सूरत में फिर आप उसको सपोर्टिव थेरेपी के लिए एडमिट करते हो और उसको इंट्रावीनस एसाइक्लोवर आपने शुरू करनी है, जो कि फिर 3 times अ डे के सूरत में आप देते हैं। और अगर पेशेंट क्रिटिकली इल नहीं है तो फिर आप उसको ओरल थेरेपी पे भी अगेन इन द सेम हाई डोजेस जो हैं वो आप उसको शुरू करते हो, जो कि शुरू करनी आपने होती हैं 24 hours विद इन द अपीयरेंस ऑफ रैश। यानी अगर रैश हुआ और पेशेंट फौरन आ गया तो फिर आप उसको एसाइक्लोवर शुरू कर दोगे, ओरल माइल्ड केसेस में, आईवी सीवियर केसेस में। और अगेन उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फिर कोई रोल नहीं रह जाता, यानी इसमें आपने देनी ही एसाइक्लोवर है। अब जो एंटीवायरल थेरेपीज हैं उसमें एसाइक्लोवर बहुत प्रेफरेबल चॉइस अब नहीं समझी जाती। जो इन्फेक्शियस डिजीजेस के एक्सपर्ट्स हैं वो एसाइक्लोवर नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं
कि इसका सेफ्टी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, और ये कि ये एक टाइम टेस्टेड ड्रग है। हमें पता है कि इसके फीटल इफेक्ट्स नहीं है, इसके प्रेगनेंसी पे कोई ऐसे अपार्ट फ्रॉम द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, जो कि हेडेक, डायरिया और ये इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए इसमें IgG आउट एंड द एंटीवायरल वेदर ओरल और IV अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी ऑफ द सिचुएशन। अब सपोज पेशेंट आपके पास आता है, यही पेशेंट है कोई 37 वीक्स पे आता है, उसको एक्सपोजर हुआ और उसके बाद आपने उसको अगर फर्स्ट किया सीरो कन्वर्जन नहीं हुई तो फिर आप वही पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दोगे। बट सपोज शी डेवलप्स चिकन पॉक्स, उसमें फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? मैम She has rash, she has fever, she has lymphadenopathy, lymph node enlargement है, general malaise and lethargy, सारे symptoms जो चिकन पॉक्स के होते हैं, and breathing difficulties as well। 37 वीक्स पे उस पे फिर उसको कैसे मैनेज करोगे जी कलसुम? Ma'am, I will admit the patient and will stabilize her first and give her. I will start her on intravenous acyclovir and will treat her symptomatically. And our main strategy will be to delay the delivery for the 7 days. हाँ, So we'll treat. एंड द डिलीवरी और डिलीवरी के बारे में क्या है? Aim of delivery would be to delay it for हाँ, 7 days. क्यों? Because पेशेंट लेबर में भी तो जा सकती है, फीवर है, सारा कुछ है, 37 वीक्स पे लेबर में तो जा सकती है। yes, ma'am, she can go, ठीक but है, लेकिन अगर फर्ज किया नहीं है तो फिर उसके बाद अगर डिलीवरी इंडिकेटेड है अदरवाइज भी, तो फिर आप उसको 7 डेज के बाद करते हो, क्यों? ma'am, because maternal and till that her maternal antibodies could develop and हाँ, transmit it to newborn, हाँ, so that it is risk फीटल of ट्रांसमिशन रिस्क कम हो जाएगा। व्हाट एल्स? um, क्या कोई इश्यू हो सकता है इसमें? um, ma'am, if she's symptomatic and she delivered early, there. तो ठीक है, so इसमें newborn रेस्पिरेटरी का है। सिस्टम्स, हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स वर्सन कर सकते हैं और हेपेटाइटिस भी वर्सन कर सकता है, या उसका न्यू ऑनसेट हो सकता है अगर पहले नहीं था तो। ठीक है, तो ये चीजें होती Yes. हैं जिसमें इसमें मदर एंड फीटल सेफ्टी दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इसमें कम से कम रैश को हुए 5 दिन गुजर जाएं, जब उसका बिल्कुल सबसाइड करने का टाइम होता है, क्रस्ट बन जाते हैं और वो उसका, तो उस वक्त हम उसको करें जनरली स्पीकिंग। ठीक है, तो अगर फर्ज किया पेशेंट को ये नहीं पता कि कब उसका एक्सपोजर था या वो याद नहीं है, तो कम से कम हमें रैश और उनके ऊपर जो क्रस्ट बने हुए हैं, जो वेजिकल्स के ऊपर क्रस्ट बने, उससे भी पता चल जाता है। उसका एक लाइफ साइकिल होता है चिकन पॉक्स का भी। तो इसमें ये होता है how we can prevent the complication in the newborn, in the same patient who has been delivered at 38 plus weeks after the chicken pox is over, in the same patient. Suppose 1 हफ्ते के बाद हम उसको डिलीवर करते हैं। Are Ma'am, there we still will. chances of the neonatal infection and how to manage it? Ma'am, and we will involve pediatrician and inform about the infection of maternal infection of chicken pox and newborns blood will be sent for to check varicella zoster virus immunoglobulin status. And ma'am, we will start our prophylactically acyclovir in the newborn, and again at 7 days we will repeat the immunoglobulin status of newborn. हाँ मतलब दोनों ही दे सकते हैं। अब इसमें ये याद रखें कि अब ये बड़ा क्रिटिकल फेज में उसको चिकन पॉक्स हो गया इन द लास्ट, मतलब
इसमें बेसिकली रूल यही है कि अगर ये फर्ज किया इसका जो है वो इन्फेक्शन हो गया इन द लास्ट 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यानी 36 वीक्स के बाद, तो 50% चांसेस होते हैं कि नियोनेटल इन्फेक्शन हो जाए। और उसमें से अब हर इन्फेक्टेड बेबी जो है वो क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन उसमें नहीं होती, rather just half of these babies have the clinical signs and symptoms, basically signs ही होते हैं बच्चों में। तो और अगर 37 हफ्ते पे हुआ, 38 हफ्ते पे डिलीवर हो गया, तो ये तो बिल्कुल 7 डेज का एक क्रिटिकल टाइम पीरियड है। सो देर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट द बेबी विल गेट द सीवियर इन्फेक्शन, जिसमें सारे स्किन, आईज एंड द CNS इन्वॉल्वमेंट। तो इसलिए फिर ऐसे बच्चों को इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं विद और विदाउट एंटीवायरल। ये फिर उनकी एक ट्रीटमेंट प्रोफाइलैक्सिस बेसिकली हो जाता है। प्रोफाइलैक्सिस में तो दोनों चीजें आ जाती हैं। सपोज देयर इज नो सीरो कन्वर्जन, क्योंकि अभी तो सीरो कन्वर्जन उसमें वो होती है जो पेशेंट का एक अपना इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना रहा होता है, बट हेयर द बेबी विल गेट द ट्रांसमिटेड एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर। तो ये जो उसका वो ट्रांसफर है, ये किसी हद तक उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, but the baby's own system is not able to make antibodies at that time period. तो इसलिए उसको प्रोफाइलैक्सिस देना जो है वो जरूरी हो जाता है। अब ये जो हम हमारा बॉडी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाता है दैट लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम पीरियड, लेकिन जो हम इम्यूनोग्लोबुलिन की सूरत में देते हैं दैट वीन्स ऑफ आफ्टर बेसिकली 2 to 3 वीक्स के बाद उसका वो इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो है इसमें फिर हम यानी एक्टिव और पैसिव दोनों चीजें हम दे रहे होते हैं। सॉरी, इसमें एक्टिव तो हम नहीं देते क्योंकि तो वैक्सीनेशन के साथ है, रादर ओरल एंड इम्यूनोग्लोबुलिन की सूरत में प्रोफाइलैक्सिस हमने इस केस में देना होता है। अब इसमें ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये इतने सारे इफेक्ट्स हैं, और दूसरी बात ये कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर पेशेंट को चिकन पॉक्स हो जाए तो उसके जो है वो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, उसमें जो है वो मिसकैरेजेस के रिस्क हो सकते हैं, नॉट टू मच एक्सटेंट, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा राइज होता है। ज्यादा जो हम बात कर रहे होते हैं वो मैटरनल सिम्टम्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ निमोनिया, हेपेटाइटिस एंड एनकेफेलाइटिस, जो ज्यादा उसके लिए वो हैं। और इसमें जब इतनी ज्यादा सेवेरिटी ऑफ सिचुएशन हो सकती है फॉर द बेबी एंड फॉर द मदर एज वेल, इज देयर एनी वैक्सीनेशन अवेलेबल एंड शुड वी ऑफर इट टू द पेशेंट? Vaccination is not देखो, हम given in रुबेला की तो करते हैं ना, हम रुबेला की इसलिए करते हैं, और वैक्सीनेशन हम उन चीजों की करते हैं जो प्रिवेंटेबल है और जिनका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है ऑन द मदर एज या फिर बच्चे के ऊपर। अब रुबेला का हमें पता है कि उसमें कितनी फीटल एनोमलीज का रिस्क है, तो इस वजह से उसमें इम्यूनाइजेशन स्टेटस डिटरमिन भी किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग। और दूसरी चीज ये कि इसमें हम इम्यूनाइजेशन ऑफर भी करते हैं इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन। अगरचे MMR जब लगा हुआ होता है तो ज्यादातर पेशेंट हमारे इम्यून ही होते हैं। तो क्या इसमें हम चिकन पॉक्स में कर सकते हैं कोई ऑफर इसको वैक्सीनेशन? मैम चिकन पॉक्स की भी वैक्सीनेशन तो अवेलेबल है, बट ये तो फिर वही बिफोर प्रेगनेंसी करनी होती है। जो those female who want to conceive are taking fertility treatment, we can check their status, and if they are not immune, so we can offer them. तो क्या हमें रूटीन में सबका स्टेटस चेक करना चाहिए चिकन पॉक्स का? वेरी No, सेलर्स ma'am. Routinely, it is not checked because many 90% people are immune. In tropical or subtropical areas, there's high risk. So that in that case, we ऐसे can तो check. रुबेला के भी इम्यूनाइज्ड होते हैं ज्यादातर, तो हमारी पॉपुलेशन इम्यूनाइज्ड है फॉर रुबेला एज वेल, बट वी डू स्क्रीनिंग इट एज अ रूटीन। रुबेला की तो स्क्रीनिंग हम रूटीन में कर रहे होते हैं। देखो, रुबेला का हमें 100% पता है, बट द इफेक्ट्स ऑफ चिकन पॉक्स आर क्वाइट वेरिएबल, और उसमें अगर हम वैक्सीनेशन ऑफर करें दिस विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड दिस विल नॉट कवर द होल स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज। तो इसलिए इसमें वैक्सीनेशन या इसकी जो रूटीन स्क्रीनिंग है वो वैक्सीनेशन किसी हद तक हम जो है वो उसमें प्री कंसेप्शन टाइम पे या पोस्ट पार्टम टाइम पीरियड में हम
ऑफर कर सकते हैं, लेकिन रूटीन स्क्रीनिंग हम ऑफर नहीं कर रहे होते। तो इसमें जो बेसिकली इसमें वही 2 डोजेस की सूरत में देते हैं, और तकरीबन जो सेकंड डोज है उसके बाद पेशेंट को कहते हैं कि अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर एटलीस्ट 4 to 8 weeks। द सेफर टाइम पीरियड इज 8 weeks कि उसमें उसने कंसीव नहीं करना। और पोस्टपार्टम पीरियड में अगर हम ऑफर करते हैं तो वो हम किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। Is this safe for in the patients who are breastfeeding vaccination अगर हम postpartum करते हैं तो? Yes, ma'am. Breastfeeding Live is attenuated, huh? Live attenuated, and the sometimes patient might get rash after the vaccination. Ma'am, breastfeeding is safe. She can breastfeed. Yes, it's because the vaccination में जो वायरल शेडिंग होती है, वैक्सीनेशन के बाद आप ये तो एहतियात करते हैं कि पेशेंट को कहते हैं कि बच्चों के पास ना जाएं या वो अपना कांटेक्ट अवॉइड करें जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके साथ। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग में जो ट्रांसमिशन टू द बेबी इज वेरी वेरी रेयर, सो शी कैन कंटिन्यू विद द ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर द वैक्सीनेशन। और बाकी जो हम एंटीवायरल और ये सब चीजें दे रहे होते हैं, ये सब की सब सेफ हैं इन ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल। ठीक है, तो ये इसको हम इस तरह से कर रहे होते हैं। अब व्हाट आर द अदर एंटीवायरल्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड फॉर यूज इन प्रेगनेंसी अपार्ट फ्रॉम एसाइक्लोवर? Ma'am, Velaciclovir. इज इट अवेलेबल? Don't know, ma'am. अच्छा, चलो ठीक है। तो इसमें अब हम इसको, मेरा ख्याल है अब इसको हम क्लोज करते हैं चिकन पॉक्स का। इसमें और तो मेरा ख्याल है कोई क्वेरी ऐसी नहीं रहेगी। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन इन द चिकन पॉक्स? और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे अमंग द पेरिनेटल इन्फेक्शन। मैम जो आपने बात बताई थी कि अगर उसको री इन्फेक्शन होता है विद इन 3 weeks, तो इसको साइक्लोवीर जो देते हैं मैम, थोड़ा सा आप दोबारा से सीरो कन्वर्जन करोगे, सॉरी वो जो है उसकी इम्यून स्टेटस आप डिटरमिन करोगे फॉर आईजीजी। अगर वो स्टिल नेगेटिव हैं तो प्रोफाइलैक्सिस आप उस वक्त देते हो। अगर वो उसमें पॉजिटिव हो गई हैं तो, और पेशेंट को देखो पॉजिटिव होने की सूरत में इट कैन बी सेल्फ लिमिटिंग बाय द पेशेंट्स ओन इम्यून सिस्टम, क्योंकि सीरो कन्वर्जन का मतलब है एंटीबॉडीज बन गई, नाउ दे कैन फाइट विद द एंटीजेंस विच आर द वायरस। जो हर्पीस वायरस ही होता है ना, ये इसका चिकन पॉक्स का भी। तो उसको, लेकिन अगर उसके सिम्टम्स आ गए, यानी अगर रैश डेवलप हो गया, तो फिर रैश डेवलप होने की सूरत में फिर आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी, जहां पे आप लिमिट करोगे टू ओनली टू द ओरल एंड द आईवी एंटीवायरल्स, नो रोल फॉर आईजीजी एट दैट टाइम। क्योंकि आईजीजी आप दे रहे हैं इम्यून, आप बेसिकली एंटीबॉडीज ही दे रहे हैं उसको, जबकि एंटीबॉडीज तो बॉडी में खुद से बन गई, तो इसलिए फिर उनके देने का कोई रोल नहीं रहता, फिर आप उसको उस तरह से देते हो। ठीक है, और इम्यूनोग्लोबुलिन का मैंने इसलिए बताया कि वो चूंकि हम एक सिंथेटिक इम्यूनोग्लोबुलिन दे रहे होते हैं, उनका एक इफेक्ट जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। तो 3 हफ्ते के बाद अगर हो जाए तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन फिर आपको रिपीट करनी पड़ती हैं इफ नॉट टू बी कवर्ड बाय एंटीवायरल्स। एंटीवायरल को आप पहले देते हो, एज अ फर्स्ट चॉइस देते हो फॉर प्रोफाइलैक्सिस, जिसमें ओरल दोनों तरह की आ जाती हैं, साइक्लोवर वाला साइक्लोवर, ये दोनों चीजें आ जाती हैं। फेम साइक्लोवर भी होती है, लेकिन वो नॉट टू बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी क्योंकि उसका सेफ्टी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये चीजें हैं जो इसमें, अब यही मेडिसिन जो है ये आप उसमें हर्पीस में भी डिस्कस कर रहे होगे। ठीक है, तो अब मेरा ख्याल है हम हर्पीस की तरफ मूव कर जाएं क्विकली। विद इन 7 days इन्फेक्शन पे विद इन 7 days अगर बेबी डिलीवर होता है तो उसमें तो टेस्ट की नीड नहीं है। हम इम्यूनोग्लोबुलिन और एज वेल एज एसाइक्लोविर देते हैं। देखो लेकिन इसमें जो हमने विद इन बताया ना 4 कि weeks है, इसमें हमने बताया कि फीटल ट्रांसमिशन के रिस्क बहुत ज्यादा हैं। एक तो प्रीटर्म बच्चों में एक एक्टिव इन्फेक्शन के फेस में क्रस्ट डेवलप हुए बगैर अगर रैश वाली स्टेज में हुआ तो फीटल ट्रांसमिशन विल बी एट इट्स मैक्सिमम, तो उसमें बच्चे में सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। मदर में जो उसके मैनिफेस्टेशंस हैं वो ज्यादा सीवियर होने के चांसेस हैं। तो फिर आपको अगर फर्ज किया बिल मुहाल अगर फर्ज किया वो लेबर में चली ही जाती है, तो उस सूरत में फिर आपको इन चीजों पे जरा फोकस करना पड़ेगा। समटाइम्स even an emergency delivery is indicated if the patient has to be resuscitated
जो है वो उसको रेस्पिरेटरी सिम्टम के हिसाब से अगर उसमें वर्सनिंग ऑफ सिचुएशन हो रही है तो definitely the full-term fetus is pressing onto the diaphragm and the respiratory system, so it has to be, the uterus has to be evacuated. So in that case, only in that case you can take a risk of delivery within the 7 days. Otherwise आपकी हर एफर्ट ये होती है कि ये 7 days के बाद ही हो, और अगर ये हो भी जाती है तो फिर इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रहें और उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी, एंड द ICU केयर फॉर द मदर एज वेल। ये सारी चीजें जो हैं वो फिर आपको उस हिसाब से करनी पड़ेंगी, और फिर उसमें बड़ी एग्रेसिव थेरेपी फिर होती है। मैम मेरा क्वेश्चन वो न्यूनेटोलॉजिकल टेस्टिंग का है कि जो विद इन 4 वीक्स अगर डिलीवर होते हैं तो उसमें हम टेस्ट कराएंगे कि नहीं, क्योंकि विद इन 7 डेज तो हम करवाते नहीं हैं, हम इम्यूनोग्लोबुलिन और असल में इम्यूनोग्लोबुलिन हम करवाते हैं, हम बल्कि स्टार्ट करते हैं अब जब भी हमने अगर फर्ज किया ये विद इन 4 वीक्स भी होता है, आप हमेशा इम्यूनोग्लोबुलिन स्टेटस को आप देखते हैं पहले। उसका इम्यून स्टेटस तो आप किसी भी टाइम पे देख सकते हैं, उसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जब आपके पास पेशेंट आया कांटेक्ट के बाद और फौरी बात कांटेक्ट के बाद, तो उसमें जितना भी जल्दी हो जाए, प्रेफरेबली विद इन 24 to 48 आवर आप एंटीबॉडी टेस्टिंग करवाते हैं ताकि उसका प्रोफाइलैक्सिस शुरू कर सकें। ठीक है, और आपको पता होता है कि इम्यून स्टेटस अभी ये डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, उस सूरत में फिर आप इसको जो है वो अर्ली करवाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट 4 हफ्ते के अंदर किसी भी टाइम पे हो गया तो फिर तो उसमें हम टेस्ट करवाएंगे ही करवाएंगे। उसमें हमें कैसे पता चलेगा उसका इम्यून स्टेटस क्या है, सीरो कन्वर्जन हुई है या नहीं हुई है। बेबी की ठीक है, टेस्टिंग है मैम, बेबी की टेस्टिंग हाँ, जब बेबी की जब टेस्टिंग में तो वो हम करवाते हैं, वो डेफिनेटली वो करवाते हैं। थैंक ठीक है, यू। और उसमें भी अब जब हम मतलब बेबी इज बॉर्न विद द सीवियर इन्फेक्शन या माइल्ड इन्फेक्शन, या चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बेबी गेटिंग इन्फेक्टेड, तो उस सूरत में भी हमने उसका सीरो कन्वर्जन स्टेटस देखना होता है, बिकॉज वॉट एवर IgG द बेबी विल बी हैविंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर, नॉट ऑफ द बेबीज ओन सिस्टम। ठीक है, वो क्योंकि वो कुछ टाइम पीरियड के बाद फिर उसका अपना इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ज्यादातर ये जो फर्स्ट 3-4 वीक्स होते हैं उसमें मदर से ही ये ट्रांसफर हुआ होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, IgG स्पेसिफिकली। ठीक है, चलें जी, अब हम जरा हर्पीस को कवर कर लें क्विकली। हु इज आवर वॉलंटियर फॉर हर्पीस? जी, हर्पीस के हमारे वॉलंटियर कौन है या अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है? अस्सलाम मैम, हम अच्छा, प्रिकॉशंस क्या लेंगे अगर पेशेंट को है चिकन पॉक्स हुआ हुआ है और वो डिलीवरी के लिए आई है, तो उसको फिर अब कैसे करेंगे? मतलब मेडिकल स्टाफ को ना हो तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस देखो लेंगे? चिकन पॉक्स से तो अब हो गया ना, आइसोलेशन, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, उसका हाइड्रेशन लेवल, और अगर वो लेबर में नहीं है तो ये सारी इसकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट चलेगी। सपोज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो जाती है और पेशेंट आपकी लेबर में चली जाती है, तो उसमें जो इसका जाहिर है एक ये इन्फेक्शन है जो सारी सिक्रीशंस और सब चीज़ों से हो सकता है, ब्लड सारी चीज़ों में से फैल सकता है। तो इसमें सारी जो प्रेपरेशंस होती हैं फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एट द एंड ऑफ पैरामेडिक्स एंड द मेडिकल स्टाफ एंड द डॉक्टर्स, ये सब के सब जो हैं वो इसमें एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, ये सारी उसमें वो हो जाएंगी। उसमें फिर लिनन डिस्पोज ऑफ, ये सब चीज़ें, यानी जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ पे कांटेक्ट होता है विद द वेजाइनल सिक्रीशंस, चाहे वो लाइकर हो, लाइकर में भी ये वायरस होता है, और इसको हम बाज़ दफ़ा जब मिड प्रेगनेंसी में होता है या बिफोर 28 वीक और हमने इसको आइसोलेट करना हो कि बेबी का इन्फेक्शन, तो हम एमनियोसेंटिसिस से भी ये देख सकते हैं। तो लाइकर में भी हो सकता है, वेजाइनल सिक्रीशन में भी हो सकता है, ब्लड में भी हो सकता है। सो आइसोलेशन सारे एंगल से, जो आइसोलेशन और प्रिवेंशन है, PPE वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें, और डिस्पोजल ऑफ द लिनन्स, और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट की स्टेरिलाइजेशन, ये सब चीज़ें इसमें ज़रूरी हो जाएंगी, because the patient is in acute infected stage where she can pass on this infection to all others.
coming in contact with all this material. मैम अगर ये 37 वीक्स पे आती हैं और जो है लेबर में, तो हम सिजेरियन वगैरह से डिलीवरी नहीं करवाएंगे या वेजाइनल ही नहीं, करवाएंगे? देखो इसमें सिजेरियन डिलीवरी इसमें राइट अवे इंडिकेटेड नहीं होती, अनलेस कोई और ऑब्स्टेटिक। ये चीज जो है ये हर्पीस में होती है, ठीक है। हर्पीस में आप देखते हैं कि अगर जो लास्ट 4 वीक्स में अगर हुआ और उसके जो इम्यून जो उसकी एंटीबॉडीज जो पास ऑन करती हैं बच्चे को, वो उसमें तकरीबन 6 हफ्ते लग जाते हैं। तो अगर हर्पीस हो गया तो उसमें इन द लास्ट 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और उसी दौरान में उसकी डिलीवरी हो जाती है, या फिर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है फॉर मोर देन 4 आवर्स, तो उसमें फिर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द फीटल इन्फेक्शन, नॉट फॉर मैटरनल इंटरेस्ट, और फॉर द मैम वो फीटल, फिर प्राइमरी उसमें अगर सेक्शन करना इन्फेक्शन हो, और हम्म? मैम अगर प्राइमरी इन्फेक्शन हो तो तब सिजेरियन करेंगे ना, सेकेंडरी या नहीं, मतलब उसमें रिकरेंट में हाँ, तो उसमें डिपेंड कर, नहीं उसमें डिपेंड, वही मैं कह रही हूँ ना कि लास्ट 4 वीक्स में हो, और उसमें लास्ट 4 वीक में प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या रिकरेंट का मतलब ये है अगर वो बहुत अरसे से चल रहा है, सपोज ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर से चल रहा है, एंटीबॉडीज उस वक्त तक बन चुकी होती हैं, लेकिन बाज दफा हमें प्राइमरी या सेकेंडरी में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 1/3 ऑफ द ओनली 1/3 ऑफ द पेशेंट विद द हर्पीस हैव द सिम्टम्स, और इसमें सिर्फ सिम्टम के ऊपर हम बेस नहीं कर सकते द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इन्फेक्शन। इस वजह से हमें ये नहीं पता होता कि ये जो इन्फेक्शन इसको अब सिम्टम्स इसको हुए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, ये अब हैं या नहीं है। यही वजह है कि इसमें जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है, HSV, जो स्क्रीनिंग है वो हम करवाते हैं फॉर बोथ 1 and 2, और उसमें फिर देखा जाता है उसकी एंटीबॉडीज, वो क्रस्ट वाला भी हम लेते हैं, PCR करवाते हैं उसका, ये देखने के लिए कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। IgG पॉजिटिव है, you can go ahead with the normal delivery because already the antibodies has been passed on to the baby। लेकिन अगर ये जो है वो उसमें वो ना हो, और क्योंकि इसमें सीरो कन्वर्जन में 6 हफ्ते लगेंगे, सो इन द लास्ट 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर हमें ये श्योरिटी नहीं है ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, तो उसमें फिर एहतियातन आप उसकी नियोनेटल ट्रांसमिशन से बचने के लिए आपने उसमें सेक्शन करना होगा, ठीक है। और इसमें जो दूसरी चीज़ है, इसमें तो ज़्यादातर तो इसमें डिलीवरी से रिलेटेड ही चीज़ें आ जाती हैं, बाकी इसमें जो इसकी केयर है हर्पीस में वो पता होनी चाहिए, और उसमें इसकी जो ख़ास तौर पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्किन एरप्शन वाली चीज़ है, देखो फीवर, लिम्फेडिनोपैथी, लेथार्जी, ये सब चीज़ें दैट आर कॉमन विद मैनी अदर कंडीशंस, लेकिन ब्लिस्टर्स, वेसिकल्स बनना या रैश का बनना, दिस इज अगेन कॉमन इन मैनी स्किन इरप्शंस। तो ट्रीटमेंट उसके हिसाब से होगी, अगरचे इसका तो एक अपना पैटर्न होता है डर्माटोम के हिसाब से, अगर ये हूं तो जेनिटल में ये कहना मुश्किल होता है, ओरल में भी जाहिर एक बड़ी टिपिकल पिक्चर होती है इसके, बहुत टिपिकल वेसिकल्स होते हैं। तो इसको फिर लेकिन दूसरों से बाकी जो इन्फेक्शन हैं, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमें पता होना चाहिए कौन सी लीजन में कैसे, कौन सी डिजीज में किस तरह की लीजन्स होती हैं, हर्पीज में कैसी हैं, चिकन पॉक्स में कैसी हैं, सिफिलिस में कैसी हैं, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम में कैसी हैं, और बाकी मतलब ये सारी जो स्किन इरप्शंस है उसमें शैंक्रोइड में कैसी होती हैं, ये सब चीज़ें डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है। यही वजह है कि जो हम लेते हैं वेसिकल्स के बेस से जो सिक्रीशंस लेते हैं, PCR जो करते हैं, दैट इज फॉर ऑल दीज इन्फेक्शंस, वो फिर सिर्फ HSV के लिए नहीं होता। और HSV की टाइप, अब ये भी हो सकता है कि उसको प्रेगनेंसी के शुरू में HSV1 हुआ हो, जो जेनिटल ओरल दोनों कर सकते हैं, लास्ट में इसका हुआ हो, जो लास्ट 4 वीक्स में है वो उसका HSV2 से हुआ हो, तो वो वाला इन्फेक्शन की एंटीबॉडीज उसको कवर नहीं कर रही होंगी, तो टाइप ऑफ द HSV कैन बी डिफरेंट। इसलिए हमने इसका ये जो है इम्यूनोटाइपिंग ये जरूर देखनी होती है, उसका एंटीबॉडी स्टेटस जो है ये जरूर देखना होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ चूंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ये शुमार होती है, इस वजह से फिर इसको हम बाकी STDs को भी इसमें वो करते हैं।
मतलब डिफरेंशिएट उसको कर रहे होते हैं, या हम उसको वो देख रहे होते हैं कि इसमें वो हैं या नहीं है, को एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। ठीक है, क्योंकि बाज दफा इट कैन को एग्जिस्ट विद HIV। तो HIV के साथ इसकी जो जब को एग्जिस्टेंस होती है तो वहां पे फिर थोड़ी सी सिवियरिटी ऑफ सिचुएशन जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ट्रीटमेंट इज अगेन बाय एसाइक्लोवर, वेलासाइक्लोवर। एंड अनलाइक दैट द केस विद द चिकन पॉक्स, इसमें फिर हमें सप्रेसिव थेरेपी देनी पड़ती है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, स्पेसिफिकली इफ इट इज नोटिफाइड टू बी, जिसमें कि वो मतलब हो गया, इसमें हमने कंफर्म कर लिया कि ये हर्पीस सिम्प्लेक्स ही है। अब इसमें पेशेंट की जो हु आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग इट, या जिनको पहले हो, अब बार दफा पेशेंट कहता है कि मुझे जो है वो प्रेगनेंसी से पहले हुआ, प्रेगनेंसी से कोई 2 हफ्ते पहले हो गया HSV, फिर आपने उसका इम्यून स्टेटस उस वक्त भी देखना है। या वो कहती है कि मुझे प्रेगनेंसी के 3rd या 4th मंथ पे हुआ, आप अगेन उसका इम्यून स्टेटस देखोगे एंड सप्रेसिव थेरेपी, ताकि उसकी रीएक्टिवेशन ना हो। इसमें बेसिकली रीएक्टिवेशन होती है डिस्पाइट द फैक्ट कि एंटीबॉडीज बनी हुई भी हों, क्योंकि इट रिजाइड्स इन द गैंग्लियन एंड देन रीएक्टिवेशन के बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं। व्हेनेवर द इम्यून स्टेटस इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इवन सनलाइट से भी उसका ट्रिगर हो जाता है। तो यहाँ कोई सर्जरी हुई हो, स्ट्रेस, इवन स्ट्रेस, सनलाइट, ये इस तरह की चीजें भी जो अमूमन इतनी जिसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये सब चीजें ट्रिगर का बायस बन जाती हैं। तो ऐसी सूरत में हमें उसको फिर और एम उस सप्रेशन का ये होता है कि बाय द टाइम डिलीवरी टाइम कम्स, उसमें उस वक्त उसकी वायरल शेडिंग ना हो रही हो, क्योंकि वायरल शेडिंग को हमने बचाना होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि जो फीटल इन्फेक्शंस हैं वो फिर काफी इसमें फीटल मोर्टेलिटी काफी हाई हो जाती है। तो मेरा ख्याल है इसमें हमने हर्पीस को भी फिर इस तरह चलते फिरते ही डिस्कस कर लिया, और इसमें हर्पीस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हम बात कर लेते हैं उस पर। उसमें वही ज्यादा जो मसला है ना उसमें, बल्कि रादर जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है उसमें उसकी एंटीनेटल प्रोफाइलैक्सिस है, प्रोफाइलैक्सिस। और फिर ये कि उसमें हमने मोड ऑफ डिलीवरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, डिपेंडिंग अपॉन द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये इन सारी चीजों के ऊपर बेस करेगा। ठीक है मैम, ये और 2024 की चिकन पॉक्स की आप शेयर कर देंगी? शेयर मैं कैसे करूं? अच्छा चलो, मैं इमरान साहब को भेज दूंगी। थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक है। बल्कि ये जो हर्पीस की हैं ये भी लेटेस्ट इसमें अपडेट्स आए हुए हैं 2024 के। मैम ये ठीक, भी। हाँ चलो ये भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ये आप मैम इसको फिर देख दोनों सकते हैं। शेयर करवा दीजिएगा, हर्पीस की भी। हाँ ठीक है, मैं वो इमरान साहब को मैसेज वो व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, वो फिर आप लोगों से शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हर्पीस से और कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको अब खत्म करते हैं मैम क्लास को। मैम अगर और वाइफ को हर्पीज हुआ हो तो फिर हस्बैंड के भी हम सारी STI स्क्रीनिंग मतलब करवानी एग्जाम में करवानी मेंशन कर चाहिए, क्योंकि सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है ना, कैन बी। और अगर हमें ये VDRL। पता है कि वेजाइनल सिक्रीशन से ये हो जाएगा तो जी। उसमें फिर जो है वो करवानी चाहिए। इवन बच्चा अगर हो जाए तो HIV। उसके बाद उसमें भी हाउ ठीक है। सेफ इट इज टू अवॉइड द कांटेक्ट, वो भी अगर तो कोई ब्लिस्टर्स हैं या इवन माउथ पे जो बने एंगल्स ऑफ माउथ पे बने हुए होते हैं, उसमें भी पेशेंट को आइसोलेशन का मतलब ये है कि किसिंग वगैरह ना करे बच्चे को, उस हद तक वो होता है। और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि स्किन लीजेंड्स हैं तो उसमें फिर आप स्पाइनल नहीं देते हो, एपिड्यूरल में तो ड्यूरा नहीं पंक्चर हुआ होता, अदरवाइज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं। और अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो उस सूरत में फिर GA देना भी बाज दफा थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो ये है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फिर कौन सी क्लास आप करना चाहते हो? कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने वैसे भेजे तो हुए हैं, मैं उसमें से भी सॉर्ट आउट कर सकती हूँ, बट व्हाट यू मैम वांट। मलेरिया और डेंगू करवा दें। जी, मलेरिया एंड डेंगू। अच्छा, मतलब पेरीनेटल इन्फेक्शन सारे कवर हो जाए। जी मैम। वैसे डेंगू तो अब होता तो कम ही है, लेकिन चलो ठीक है, मलेरिया और डेंगू। ओके, थैंक यू मैम। ठीक, ओके।